अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का दलाइल में कहना था कि सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तें ले सकती हैं जब कम अज़ कम एक उम्मीदवार जीता हो। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आर्टिकल 51 को बुरोएकार लाया जाए। समाअत इस वक्त बराह रास्त जारी है। In a political party, they add on to the tally. Now, here, the independent returned candidate is joining a political party. After joining this political party, he becomes a member of that political party. And when he becomes a member of that political party, on account of such membership, and after oath having been administered to him, he must necessarily become member of parliamentary party of that party. If I may take your lordships to clause 2 of article 63A, I'll first read it out and then I'll make my submission. Clause 2 of article 63A, sir. A member of a house shall be, and after oath having been administered to him, he must necessarily become member of parliamentary party of that party. If I may take your lordships to clause 2 of article 63A, I'll first read it out and then I'll make my submission. Clause 2 of article 63A, sir. A member of a house shall be deemed to be a member of a parliamentary party if he, having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house. Take a pause here, sir. Sorry, I missed it. Clause 2 of article 63A, sir. 63A. अच्छा, okay, I was reading 63A. I'd reread it. A member of a house shall be deemed to be a member of a parliamentary party if he, having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house. A pause here. So, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं और उनकी अपनी पार्लियामानी पार्टी होती है, मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी से अलग होती है। मैं उस पॉइंट पे नहीं, मैं यहाँ पे तो सिर्फ ये सबमिट कर रहा हूँ कि फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू हैव अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन द हाउस, इट्स कैंडिडेट्स और नॉमिनीज मस्ट हैव succeeded in the elections to constitute that parliamentary party. Now, if I may read the language after. Or, having been elected otherwise than as a candidate or nominee of a political party, now this is independent, has become a member of such parliamentary party after such elections. The effect of this is that an independent returned candidate who becomes a member can only join such parliamentary party of a political party whose at least one member, one candidate or nominee must have succeeded in the elections to constitute that parliamentary party. It's after the constitution of the parliamentary party. That is when he takes oath and becomes a member of the house. But at that point in time, the joining of that independent with that political party is entirely irrelevant for purposes of. मैं उसी पे ही बात रहा हूँ sir. Now when you're looking at it's entirely irrelevant. Now my proceedings. Now let me proceed with my submissions here. Prior to all of this. I just now want to make a submission. इधर ही सवाल आ जाता ना, इसमें जरा क्लियर कर दें, because I couldn't find the provision. How does a party become a parliamentary party? Which provision governs that?
केस की समाज जारी है। दीगर खबरों में आपको बताएं, जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डाटा किसने लीक किया, हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया। वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत, एक्स डाटा लीक करने वाले अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करे खत का मतन। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का ज़ाती डाटा एक्स पर लीक हुआ था। कौन होगा अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, फैसला आज होगा। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्रुर के लिए गौर किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, कौन होगा अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, फैसला आज होने जा रहा है। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में लफ्ज़ी जंग शिद्दत अख्तियार करने लगी है। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं MQM ने फिर नफरत की सियासत शुरू कर दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत फैलाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का दर्स इन्हें बानी MQM से मिला है। इनके जहनों में नफरत भरी हुई है। भुट्टो के खिलाफ इन्होंने इतनी छोटी बातें की हैं, हमें हर सूरत 40% नौकरियां अर्बन एरियाज को देनी हैं। अगर MQM नई सोच की बात करती है तो जहरीली सोच छोड़ना होगी। ये मुहाजिरों को कभी सिंधियों, कभी बलोचों, कभी पख्तूनों तो कभी पंजाबियों से लड़वाते हैं। कराची की बर्बादी MQM के आने के बाद हुई है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स देने पर भी टैक्स लगाया गया है। हुकूमत ने अनोखे तरीके से आवाम को लूटने की प्लानिंग की है। इतने ज्यादा टैक्स एक साल भी नहीं चल सकते। हुक्मरान तबका कर्जे लेकर अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब भी वक्त है, नैब को ख़त्म कर दिया जाए। मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। जब तक मुल्क में सियासी तमाशे ख़त्म नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। क्या क्या किस किस अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान की आवाम को लूटने की कोशिश की है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मेरा तो ख्याल है ये साल भी ये इस किस्म की टैक्सेशन नहीं चल सकती। अगले साल क्या करेंगे? क्या आपने कोई रास्ता ढूंढा है आगे का कि कैसे हम अखराजात को कम करेंगे और आमदन को बढ़ाएंगे? फाटा के नाम पर पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री आज तबाह हो रही है। इस हुकूमत को आप देख लें, ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे और इनका सबसे पहला अमल था कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए असेंबली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को मजबूत किया। बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदनत पटेल का कहना है ज़ेर अल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर रद्दअमल में उन्होंने मजीद कहा अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया कि आइन के मुताबिक अवाम के हकूक़ का एहतराम और आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में अहम मोड़, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रंप को मुकदमात में जुज़वी इस्तिस्ना मिल गया। 6 जजेस ने ट्रंप के हक में जबकि 3 जजेस ने मुखालिफत में फैसला दिया। फैसले में कहा गया है साबिक सदूर को अपने बुनियादी आईनी इख्तियारात के लिए मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इस्तिस्ना के केस को लोअर कोर्ट को वापस भिजवा दिया। साबिक सदर और आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवार ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की बड़ी फतह करार दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर और मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन ने फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खतरनाक मिसाल कायम की है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत पर हमला और मोतसबाना है। डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला आने से सदारती इलेक्शन में उनकी पजीराई में इजाफा होगा।
अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज यूनिट के अफसरान ने कोरोना के नाम पर करोड़ों रुपए खिलाफ कानून खर्च कर डाले। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए 99 करोड़ 60 लाख रुपए दिए थे। अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज यूनिट ने सिर्फ जुबानी हिदायत पर 3 करोड़ से जायद रकम खर्च कर दी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मामले की जांच पड़ताल का भी हुक्म दे दिया है। इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले के हवाले से वो अपडेट करेंगे। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज यूनिट के अफसरान ने कोरोना से निपटने के नाम पर खिलाफी कानून करोड़ों रुपए खर्च किए। इस सिलसिले में ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज यूनिट को 99 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए थे और इस सिलसिले में जो है पीएनडी बोर्ड की जानिब से जुबानी हिदायत पर 3 करोड़ से जायद रकम खर्च कर दी गई अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज यूनिट की जानिब से, और इस रकम को जो है खिलाफ कानून सिर्फ जुबानी हिदायत पर खर्च किया गया। करोड़ों रुपए इस खर्च के हवाले से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अर्बन सेक्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज यूनिट के अफसरान की जानिब से वह सिलसिले में इस मामले को, इस खर्च को खिलाफ कानून करार दिया और मामले की जांच का हुक्म भी दिया। और ये कहा गया रिपोर्ट में अर्बन सेक्टर प्लानिंग। ठीक है, इदरीस शेख हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर है, कायदे-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान की जानिब से कौमी खजाने को अरबों का झटका। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब कॉरपोरेट वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाने का फैसला। कंपनी के अफसरान कसीर ज़र मुबादला खर्च करके भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से केस हार चुके हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये तनाज़ा था सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के साथ कादम थर्मल पावर कंपनी का, और इस सिलसिले में जो इस मामले को मुकामी तौर पर हल करने के बजाय कादम थर्मल पावर कंपनी ने इस सिलसिले में लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई, वहां पर केस दायर किया और उस केस हारने के बाद अपील भी दायर की थी, जो कि हार गई। इस सिलसिले में अब फैसला किया गया है कि इस तमाम ये जो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा पंजाब के खजाने को, इससे मुतालिक एनर्जी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को भिजवाने का फैसला किया है। कादम थर्मल पावर कंपनी के अफसरान जो कसीर ज़र मुबादला खर्च करके लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से ये केस हार चुके हैं। सिलसिले में नाकाम कोशिश की गई बैनुल अक़वामी सतह पर इसको हल की, बजाय इससे कि ये मुकामी तौर पर दोनों स्टेक होल्डर्स इस मुल्क से ही ताल्लुक रखते हैं। सुई गैस जो है, सुई नॉर्दर्न गैस मुल्की कंपनी है, इसके साथ साथ कादम थर्मल पावर कंपनी पंजाब की कंपनी है। इस सिलसिले में ये बैरून मुल्क के सिलसिले में जो तमाम सर इस केस को जो है इस सिलसिले में फाइट की गई, उससे मुतालिक रिपोर्ट जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को भिजवाने का फैसला किया गया। और इस सिलसिले में सराय का ये कहना है कि अफसरान कौमी खजाने से बरतानिया की सैर के ठीक है, बरतानिया की तहकीक के हवाले से भी बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया। फंड्स के ना मिलने पर पीपल्स पार्टी के अरकान बलोचिस्तान असम्बली वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी से नाराज़ हो गए। ज़राए के मुताबिक MPAs ने पार्टी क़यादत को सरफराज बुगटी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 4 जुलाई से बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो बलोचिस्तान के अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद के अपडेट्स हैं, आमना जंजुआ से जानते हैं। जी आमना। जी देखिए, पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वो फंड न मिलने पर वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से नाला हो गए हैं। अरकान की जानिब से पार्टी की आदत को सरफराज बुगटी के खिलाफ शिकायत के जो है अंबार लगा दिए गए हैं। पार्टी की आदत अरकान की शिकायत का जो नोटिस भी दे लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 4 जुलाई से जो है बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के नाराज अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। पार्टी चेयरमैन अरकान की शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। इस अलावा वज़ीर-ए-आला हाउस में बिलावल भुट्टो की आमद से मुतल्लिक जो है वो अहम इजलास भी आज हुआ है। अरकान बलोचिस्तान असम्बली को चंद मखसूस अरकान को फंड मिलने और इन्हें नज़रअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बलोचिस्तान में PP अरकान की जो है इस वक्त ग्रुपिंग का शिकार हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से आमना। बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात इशफाक मुगल से जानते हैं। जी इशफाक, बताइएगा ये स्लैब्स किस तरह से डिवाइड की गई हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत नेपरा की जानिब से जो है वो जो इशफाक मोल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। भी आपको बताएं कि बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स्ड चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना लिए जाएंगे। 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 1000 रुपया वसूल किया जाएगा। फिक्स्ड चार्जेस की मद में अपडेट कर रहे हैं आपको। फिक्स्ड चार्जेस में इजाफे का मकसद डिस्कोज के रेवेन्यू में इजाफा करना है। इशफाक मुगल इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी इशफाक।
जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की जो के नफाज का तरीक़ाकार जो सामने आया है, उसके मुताबिक फिक्स चार्जेस जो है वो 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए नहीं होंगे। ताहम 301 से लेकर 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 200 रुपये फी जो 200 रुपये जो है वो लिए जाएंगे, जबकि 401 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 400 रुपये फिक्स जो चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा 501 यूनिट से 600 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 600 रुपये, जबकि 601 से लेकर 700 यूनिट बिजली। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक, आपने अपडेट किया। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बॉलिंग अच्छी नहीं जाती, तो ये जब टीमें जीती है तो वो एंड स्पॉट पे वो परफॉर्म हो जाता है उसकी वजह से। तो किसी एक जगह पे आप उस पर वो नहीं कह सकते कि यार हमारी क्या गलती थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एज ए टीम हम सारे उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं खेले जो हमारी कौम से हमारी एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई कहा जाता है कि पार्टी की जी देखिए, हमें क्या हुआ जो आप लोगों के दिलों में सवाल करे इशू नहीं है, मगर आप अपने आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहाँ तक पहुँचना है। बस रिजवान भाई ये बता दें कि कहा जा रहा है कि टीम के अंदर जो है पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो टीम नहीं खेल पाई, और दूसरा अफगानिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल पाई है, तो अफगानिस्तान की टीम के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो जर्नलिस्ट डे का आज जो फंक्शन है और इसमें ज़्यादातर बातें यही हुई है कि हमें तासुब में रखा जा रहा है, XYZ जो बातें हमारी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर वो मुसलमान है तो। दूसरा, वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का, जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं, हमें लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा कि टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीज़ें थी। अगर मुख्तलिफ चीज़ें होती तो इससे पहले तो हम ऐसे आ रहे हुए, मगर ये लोगों की बातें होती है। ये वही टीम है जो अलहम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में सेमीफाइनल भी खेले, हाँ इवेंट नहीं जीत पाए हम, सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, बहुत सी चीज़ें खेले। लोग क्या कहते हैं, हर किसी इंसान की अपनी अपनी राय है। और अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान की टीम जो उसमें ज़्यादातर लड़के जो इनके सीनियर है, स्पेशल कुछ 2-3 अब रह गए, बाकी तो यंगस्टर ज़्यादा आ गए, तो पेशावर में ही खेले हुए। उनके प्लेयरों से अगर आप मिलेंगे तो यकीन करें इस टाइम वो काफ़ी हार्ड वर्कर है सारे। राशिद भाई से भी उनके बारे में पूछा गया था, राशिद लतीफ़ से, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अपडेट्स आपने मुलाहिजा की, आपको बताएं कि लाहौर में थाना मुस्तफ़ा टाउन की हदूद में बैलफ टीम और पुलिस पर फायरिंग की गई है। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अदालती हुक्म पर बैलफ पुलिस के हमरा घर खाली करवाने गए थे, जिसके बाद उन पर फायरिंग की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अदालती हुक्म पर बैलफ पुलिस के हमरा घर खाली करवाने गया था। मुल्क भर में रवा हफ्ते मानसून बारिशों का आगाज़। बारिशों के बाद दर्जे हरारत में कमी, लेकिन सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात हैं। वफाक़ी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के बालाई इलाकों में आज से बादल जमकर बरसने की तवक्को। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, रवां हफ्ते में मानसून बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है। 2 जुलाई से 7 जुलाई के दरमियान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त भी सूरज की तपिश जो है वो खासी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी वाज़िया इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में
गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं और इसके साथ साथ पंजाब के बलाई इलाकों में भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। आज महकमा मौसमियात ने शाम के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जबकि जुड़वा शहरों में भी आज बादल बरसेंगे और 7 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, लेस्को में बदउनवान नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़, बिजली चोरी में मुलव्वस मजीद 12 अहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। तमाम अहलकारों को बिजली चोरी में सहूलत कारी करने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। किसी मुलजिम की जानिब से शोकाज नोटिस का जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर कार्रवाई हुई। अदनान अजीज अपडेट करेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, लेस्को चीफ की जानिब से जो हदायत जारी की गई उसके मुताबिक बिजली चोरों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और उसके अलावा जो बिजली की जो सहूलत कार है उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अगर आज बात करें तो नौकरी से बर्खास्त होने वालों में कसूर सर्कल के बिल डिस्ट्रीब्यूटर बशीर अहमद, मीटर रीडर कलीमुल्ला, मीटर रीडर गुलाम मुर्तजा, मीटर रीडर गुलाम सरवर, मीटर रीडर मोहम्मद शाहिद और लाइनमैन जफरुल्लाह शामिल है। जबकि ननकाना सर्कल के मीटर रीडर शहजाद अकरम, मीटर रीडर मंजूर हुसैन, मीटर रीडर अब्दुल्ला, मीटर रीडर मोहम्मद अकमल, असिस्टेंट लाइनमैन हाफिज गुलबाज और असिस्टेंट लाइनमैन मोहम्मद अदनान शामिल हैं। तमाम अहलकारों को बिजली चोरी में सहूलत कारी करने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए थे, ताहम किसी मुल्ज़म की जानिब से शोकाज का जवाब जमा नहीं करवाया गया। करवाया गया। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया। पेशावर समेत केपी के बेशतर अजला में दर्ज हरारत बढ़ने के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। ट्रिपिंग के बायस बरक़ी आलात भी नाकारा होने लगे। दूसरे सूबे के मैदानी इलाकों में प्री मानसून का सिलसिला कल से शुरू होगा। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली से। जी लिहाज। पेशावर में इधर हरारत का पारा बढ़ा, उधर बिजली की आग मचूली शुरू हुई। वो फीडर जहाँ पर 90% से ज़ायद रिकवरी होती है पेशावर में, वहाँ पर भी तकरीबन 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। और बिजली की लोड शेडिंग भी ऐसी कि 10 मिनट के लिए बिजली आ जाती है, फिर आधे घंटे के लिए चली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक इस वक्त उन्होंने वफाक को भी एक मरासला भेजा है। ताहम पेशावर के मुख्तलिफ शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेशतर बरक़ी आलात इसी वजह से जल गए हैं कि बिजली की मुसलसल फ्लक्चुएशन हो रही है। बालाई अजला है जिसमें मलाकंड और हज़ारा डिवीज़न है, वहाँ पर इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है, जो कल से खैबर पख्तूनख्वा की मैदानी अजला में भी शुरू हो जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, गजा में इसराइली जंग जारी। शुमाली गजा के शहर खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की जानिब से एक मकान पर गोलाबारी के नतीजे में एक शख्स शहीद हो गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से फौरी तौर पर इनखला का हुक्म देने के बाद सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनी और मरीज़ खान यूनिस और यूरोपीय अस्पताल से भागने पर मजबूर हो गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइल की जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से करीब पहुँच चुकी है। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलेसा ने बताया कि इसराइली जेलें में गजा के कैदियों से भरी पड़ी हैं, जिन्हें रोज़ाना अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।